welcome to your own home. We have ages-old fraternal relations and shared commitments and love and affection. So you're most welcomed. It's a very happy moment for us that when we met 21st of February, we agreed that you will very kindly make a visit, and you are fulfilling your promise. I wish your visit should have been longer, but I know you have huge commitments global. So on behalf of my colleagues, myself, our government, we very wholeheartedly welcome you, and thank you for coming to MOFA, which is again our common ministry, and we are working together for the benefit and the welfare of our two nations. I'll request you to say a few words, then we'll ask the media to leave so that we can then have some serious business. Your Excellency, first of all, let me Say a few words, then we'll ask the media to leave so that we can have some serious business. Your Excellency, first of all, let me say how honored, delighted, touched I am with your hospitality, being back to Pakistan, a country which is not only close to our hearts in the UAE, but to my heart personally. I mean, I have wonderful memories growing up coming to Pakistan. So it's wonderful to be back, and thank you for arranging nice weather for us today. Your dua is quite powerful, my dear colleague. Thank you. I must say that our relationship has been growing on a good pace. I think both our leaders, but the people of Pakistan and the UAE do want to see more development in the relationship. And I also have to stress that in the last year or two, things have been moving faster than they have for a while. And I really look forward that the good spirit that's been moving the relationship in the last few months would continue on so many different sectors. If it's trade, investment, aviation. دفتر خارجہ نائب وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار اور نائب وزیر اعظم متحدہ عرب امارات، جن دونوں کے پاس پورٹ فولیو ہے وزارت خارجہ کا بھی، وزرائے خارجہ بھی ہیں اپنے اپنے ممالک کے، شیخ عبداللہ بن زائد النہیان، شیخ زائد بن سلطان النہیان کے صاحبزادے ہیں، جو اس وقت ایک اہم ڈیپٹی پرائم منسٹر کے عہدے پر بھی نامزد ہیں، تعینات ہیں، وزارت خارجہ کا اہم منصب بھی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ دفتر خارجہ پہنچے تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے انہیں منسٹری آف فارن افیئرز میں دفتر خارجہ میں خوش آمدید کہا۔ مختصر میڈیا ٹاک ہوئی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، قریبی تعلقات کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ جملے آپ کہیے، پھر میڈیا کو ہم باہر بھیج دیں گے، اور اس کے بعد جن مفاہمتی یادداشتوں پر ہم نے کام کرنا ہے، جن موضوعات پر آج ڈسکشن ہونی ہے، ان پر گفتگو ہوگی۔ مختصر الفاظ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان نے جو کہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں بڑے ہوتے رہے ہوئے، اور پاکستان آنا رہا ان کا بڑے سالوں تک۔ انہوں نے کہا میں پاکستان میں ہی بڑا ہوا ہوں اور اس کو دیکھتا رہا ہوں، بار بار آتا رہا ہوں، تو اچھا لگتا ہے۔ اسلام آباد کا موسم انہوں نے کہا خوشگوار ہے، تو ہمارے لیے موسم خوشگوار کرنے کا شکریہ۔ غیر اس میں گفتگو کی، اور اس کے بعد اب باضابطہ باقاعدہ ڈائیلاگ کا آغاز ہوگا، جن میں عام سفارتی امور اور دیگر جو ملکی اور معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں بارشوں کی صورتحال بہتر ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا تھا کہ بارشیں بہت کم ہوئی ہیں، ملک میں پانی کی قلت ہو سکتی ہے۔ اب چونکہ بارشیں ہوئی ہیں تو پانی کی سطح میں بہتری آئی ہے اور صوبوں کو پانی کی فراہمی بڑھا دی گئی ہے۔ ایسا ترجمان کے مطابق پنجاب کو پانی کی فراہمی
23,800 क्यूसिक बढ़ाकर 64,800 क्यूसिक कर दी गई है। सिंध को पानी की फराहमी 10,000 क्यूसिक बढ़ाकर 45,000 क्यूसिक कर दी गई है, जबकि बलूचिस्तान को पानी की फराहमी 500 क्यूसिक, KP को 1900 क्यूसिक और तखरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया। मुल्क में बारिशों के बाद पानी की सूरत हाल बेहतर हुई है। इरसा ने भी सूबों को पानी बढ़ाकर फराहम करना शुरू कर दिया है और खरीफ सीजन के लिए पानी की किल्लत का तखमीना जो पहले 43% बताया जा रहा था, अब वो तखमीना भी कम हो गया है। सिर्फ 27% औसत से कम पानी होगा और इंशाल्लाह और बारिशें होंगी तो ये और कम हो जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियां मोइन वट्टू का कहना है कि हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत ना होने से तनाज़े का शिकार हुआ है। चोलिस्तान में बनने वाली नहर पर एतराज़ उठाया जा रहा है। उनका कहना था कि पहले से मौजूद फॉर्मूले के तहत ही इस नहर को पानी दिया जाएगा। टोटल कितनी नहरें हैं जिसके ऊपर सिंध को इतराज़ है, वरना ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत तो ये और भी सूबों में बननी है? नहीं, बाकी नहरें तो ऑलरेडी पहले के इश्यूज़ हैं, जिसमें से 2 नहरें सिंध की हैं, 2 पंजाब की हैं, 1 बलूचिस्तान की है। मगर जो एक नहर पे जिस पे ज़्यादा इशू अब जो ताज़ा तरीन जो है वो है जो चोलिस्तान वाली नहर है। उसमें भी मैं यही आपको अर्ज़ करूँगा कि जो पहले फार्मूला इरसा का है उसी के तहत उस नहर को पानी दिया जाएगा और कोई अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है जैसे वो चाहे। कोई ऐसा डिस्प्यूटेड इशू है नहीं, मगर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग या नेगोशिएशन ना होने की वजह से ये सिचुएशन पैदा हुई है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जरदारी साहब को इख्तियारात हैं तो फिर ठीक है, वो अपने इख्तियारात के तहत आपको बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, फिर करना शुरू कर दें। आप नहीं करेंगे वो। आपने जो बिलाल भुट्टो साहब ने कहा कि हम हुकूमत की सपोर्ट वापस ले लेंगे, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नून लीग के वोटों से मुंतखब हुए हैं। अगर मामला हुकूमत की सपोर्ट लेने का तो पहले तो पीपल्स पार्टी ने एक स्टेप बैक करके सदर जरदारी साहब ने ये कहना है कि मैं उनकी हिमायत वापस करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। जरदारी साहब आइन में जो तरीक़ेकार दर्ज है सदर को मुंतखब करने का, उसके तहत मुंतखब हुए हैं। अगला सवाल चेयरमैन सेनेट का आएगा, वो भी जो तरीक़ेकार आइन में दर्ज है उसके तहत मुंतखब हुए हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली आइन में दर्ज तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो मुंतखब होकर आएँ। हाँ, सिर्फ 2 सूबों के गवर्नर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने या चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट किए हैं। सिर्फ 2 गवर्नर्स हैं, उसकी बात करें। बाकी तमाम ओहदे जब देखें कोई भी हुकूमतें बनती हैं और मुख्तलिफ़ जमातों की वो सपोर्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ तय होती है कि ठीक है हम आपकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, आपने हमें यहाँ वोट करना है, उन्होंने वोट कर दिया। वफाकी हुकूमत में उन्होंने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा ले, काबीना में हिस्सा बने, हम नहीं बने हैं। अब अगर हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, जो हुकूमत होती है, हम हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अगर हुकूमत की सपोर्ट हमारे लिए मसले का सबब बनेगी, हमारे सूबा सिंध में जो हमारी हुकूमत है, जहाँ हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उसके लिए मसाइल पैदा करेगी, तो यकीनन हम ये बात ज़रूर सोचने पर मजबूर होंगे कि हमें इस हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रेसिडेंट हों, चेयरमैन सेनेट हों, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हों, अगर PMLN जो है हमारे इतने खिलाफ हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है, तो फिर उनके पास आइन में तरीके अगर मौजूद है ना, हटाने की कोशिश कर लें। सर, नहरों पे आप भी मुखालफत कर रहे हैं। 3 दिन से नहरों के मामले पे बबरलो बाईपास पे धरना चला है। सारी जमायतें के रहनुमा लोग जो सियासी समाज वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनके पास या उनके कोई रहनुमा या सियासी लोग उनके पास क्यों नहीं पहुँच रहे हैं, उनकी हिमायत क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, इसमें सवाल है, बेनज़ीर साहब ने धरना लगाया था कमू शहीद पे, सारी पार्टियों को बुलाया था, मैं मीडिया सारी को ले गई थी, मैं साथ था धरने में, खानगढ़ में रही थी 2 दिन। तो आप सारी पार्टियों को क्यों नहीं बुला के एक जगह पे बिठा के जो एक मुखालिफ जहाँ सारे देखें, एक तो गालियाँ निकाल देखें, एक तो जो पहला सवाल किया गया, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वही है कि कनाज़ नहीं बनने चाहिए। बाकी जमातें या जो वकला या जो दीगर शोबों से रखने वाले लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि कनाज़ नहीं बनने चाहिए। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मैं तो हमेशा हर बात में ये कहता हूँ कि हम अप्रिशिएट करते हैं सबको कि उन्होंने ये इतना स्टांस अपनाया है कि कनाज़ नहीं बनने चाहिए। और सूबा सिंध के तमाम लोगों का सियासी तफरीक से हटकर, जो पीपल्स पार्टी में हैं, जो पीपल्स पार्टी में नहीं हैं, सब ये कहते हैं कि कनाज़ नहीं बनने चाहिए। तो इस पर तो हमारी लड़ाई बनती नहीं है।
हम आपस में हमें इत्तेफाक पे एक ही बात करनी चाहिए। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं उनको कोई मौका नहीं मिला कि वो पीपल्स पार्टी को सिंध में कमज़ोर कर सकें, तो उन्होंने शायद इसको मौका गनीमत जाना और जरदारी साहब की एक कोई मीटिंग का रेफरेंस बना के, हवाला बना के उसको उछालना शुरू कर दिया। उसको बुनियाद बना के पीपल्स पार्टी को, बजाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लें इस बात में कि जी केनाज नहीं बन रहे, पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है, वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं, हमें केनाज बनाने वालों के साथ खड़ा करते हैं। तो ये सूबा सिंध की वो खिदमत नहीं कर रहे हैं कि सूबा सिंध के लोगों का एक मौक़िफ़ है, लेकिन ये हमारे मुखालिफ उस मौक़िफ़ में किसी तरह का कोई डिवीज़न पैदा करना चाहते हैं, डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। तो मुझे तो कभी कभी शायद हैरत होती है कि ये किस एजेंडे पर हैं, कि क्या सूबा सिंध के लोगों की एक आवाज़ हो जाए वो ज़्यादा मौसर होगी, या उसमें तकसीम पैदा करें कि नहीं पीपल्स पार्टी इधर है बाकी इधर है और फिर हम आवाज़ लगाएं। उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा यकीनन सूबा सिंध में केनाल्स बनाने वाली कुव्वतों को होगा। और ये सवाल आप उनसे ज़रूर करें कि किस एजेंडे पे वो ये तकसीम पैदा करते हैं। चलें, मैं अगर उनकी बात मान लूँ, जो ये कहते हैं पीपल्स पार्टी दिखावे के लिए कर रही है, और भाई दिखावे के लिए भी खड़ी तो उस मौक़िफ़ के साथ है ना, डर के खड़ी है, और रुकवाने का जो आइनी इख्तियार है, आइनी रास्ता है, वो पीपल्स पार्टी के पास है। ये जो एहतजाज कर रहे हैं हमारे दोस्त, ये ठीक है, अच्छी बात है, एहतजाज करें, सिंध के लोगों की आवाज़ को पहुँचा रहे हैं वो, लेकिन आइनी कानूनी जो फोरम्स हैं वहाँ पर इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। और दूसरा सवाल आपने किया था कि कम्मू शहीद पे बीबी गई थी, देखें उस वक्त हम अपोजिशन में थे और तमाम जमातों को बीबी ने इकट्ठा किया, और तमाम जमातें आज भी इत्तफाक है केनाल्स के इशू पे, सब में कोई इस पे झगड़ा नहीं है, झगड़ा कोई और चीज़ें हैं। तो आज भी इत्तफाक सूबा सिंध की तमाम जमातों में है। लेकिन आज हम हुकूमत में फ़र्क ये है, हुकूमत के पास दीगर ज़राए होते हैं एहतजाज के अलावा भी। अब ये तो नहीं हो सकता कि हमें पहले दिन पता चला कैनाल बन रहे हैं, हम बजाय CCI की मीटिंग बुलाने के, बजाय एकनेक में शोर मचाने के, बजाय इरसा में बात करने के, हम सड़क पे आ जाएं। तो लोग हमें कहते कि भाई आपके पास इरसा है, आपके पास CCI है, आपके पास पार्लियामेंट का सेशन ज्वाइंट है, तो आप वो फोरम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? तो हम जो आइनी फोरम्स मौजूद हैं हमारे पास, जिसमें सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा कर सकती है, हम वो किरदार अदा कर रहे हैं और बड़ा मौसर तरीके से अदा कर रहे हैं। और शायद हमारे इस दबाव की वजह से CCI का इजलास आज तक नहीं बुलाया जा रहा। सर ये बताइए कि उन धरनों की वजह से पंजाब से कराची जो मवेशी कुर्बानी के लिए लाए जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रक वो, और जो अजनास का मामला है वो ट्रक रुक गए हैं, फंस गए हैं, तो उस हवाले से आपकी हुकूमत क्या इक़दाम करेगी? देखें, बात आपकी ठीक है, और ये बात चेयरमैन साहब ने जब तकरीर की हैदराबाद में उसमें भी की थी कि धरने से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग सूबा सिंध के रिहायशी हैं, वो केनाल्स बना नहीं रहे हैं। तो बजाय इसके कि जो केनाल्स बना रहे हैं उनको तकलीफ़ दें, हम उन्हीं को तकलीफ़ दे रहे हैं जो केनाल्स बनाना नहीं चाहते, जो केनाल्स के ख़िलाफ़ हैं। तो जो तंजीमें, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके एहतजाज को हम सराहते हैं, हमारा मौक़िफ़ वही है जो उनका मौक़िफ़ है। लेकिन एहतजाज के ज़रिए सूबा सिंध के लोगों को तकलीफ़ में डालना कोई मुनासिब बात नहीं है। हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनसे राब्ते में है, हमारे कुछ और दोस्त उनसे राब्ते में हैं, और हमारी कोशिश है कि हम उनका एहतजाज को मुतासिर ना करें, एहतजाज वो करें, भरपूर करें, शायद इससे ज़्यादा करें, लेकिन इस अंदाज़ में करें कि जो आम शहरी हैं उनको तकलीफ़ ना हो, ताकि वो भी आसानी से जो है वो इस एहतजाज में शामिल भी हो सकें और अपनी जो हमदर्दियाँ हैं उनकी इस एहतजाज करने वालों के साथ रहें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और कैनाल्स के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने कहा है कि पानी के मसले पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। कोई सूबा किसी दूसरे सूबे का एक कतरा पानी भी नहीं ले सकता। सूबाई मुनाफरत पैदा करने के बजाय इस मामले को तकनीकी लोगों और इंजीनियर्स के हवाले कर दें। नारोवाल में एक तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान को संगीन मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। आने वाले सालों में मज़ीद सैलाबों और बदतरीन खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है। हमारे सामने इस वक्त फूड और वाटर सिक्योरिटी के दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। सूबाई मुनाफरत पैदा करने के बजाय इस मामले को इंजीनियर्स के हवाले करें। जज्बात भड़काने की सियासत की तो वाटर सिक्योरिटी मामले पर मुश्किलात होंगी। इस पर नुकसान सबका होगा, एक सूबे का नहीं, तमाम सूबे इस पर नुकसान उठाएंगे।
वज़ीर आज़म ने सरकारी अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नया निज़ाम मंजूर कर लिया। अफसरान की तनख्वाहें बराह रास्त उनको कारकर्दगी से मुंसलिक होंगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम का पहला तजुर्बा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान पर किया गया, जो कामयाब रहा। इस कामयाबी के बाद निज़ाम को मुल्क के तमाम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में नाफिज करने का फैसला किया गया है। निज़ाम क्या है? अफसरान को ए से ई तक 5 दर्जों में तकसीम किया जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी वाले ए कैटेगरी अफसरान को 4 गुना इजाफी तनख्वाह मिलेगी। सबसे कम कारकर्दगी ई कैटेगरी वालों की होगी, जिन्हें कोई इजाफी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हर 6 माह बाद टेम्पर प्रूफ तरीके से अफसरान की कारकर्दगी जांची जाएगी और इस तरीक़े कार में किसी भी अफसर के 45 साथी अफसरान की गुमनाम तौर पर राय शामिल की जाएगी। इसके अलावा तकनीकी टीम काम का आयार भी जांचेगी। याद रहे कि 21 था 27 अप्रैल मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम की जा रही है। इंसदाद पोलियो मुहिम मुल्क गिर मुहिम का आगाज़ हो गया है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुहिम में 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 4 लाख से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन पोलियो वर्कर्स खिदमात सर अंजाम देंगे। वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोलें। अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन कराकर उम्र भर की मासूरी से बचाएं। मुसलसल पोलियो मुहिमात के नतीजे में वायरस की मौजूदगी में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई है। मुहिम के दौरान 65 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। शिबा हैदर से मज़ीद जानते हैं। जी शिबा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई है। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान सूबे भर में 65 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि पेशावर में 8 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में पोलियो की टीमें तैनात है। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो मुहिम के लिए 32,000 से ज़्यादा पोलियो की टीमें तश्कील दी गई है, जबकि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए 50,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। रवां साल सूबे में पोलियो का एक केस रिपोर्ट किया गया है। जुनूबी वज़ीरिस्तान में भी पोलियो की टीमें मौजूद है और वहां पर भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। जी, और स्तौर में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। सख्त बारिश और बर्फबारी के बावजूद भी पोलियो मुहिम जारी है। मजीद बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान। मुल्क भर की तरह जिला स्तौर में भी आज से 21 अप्रैल से पोलियो मुहिम यहाँ पे मनाया जा रहा है। 5 साल से कम उम्र तकरीबन 17,000 बच्चों में जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। यहाँ पे मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से शदीद बारिश और बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। इसके बावजूद भी यहाँ पे जो DHO है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर डॉक्टर नवाब अहमद के मुताबिक तमाम बालाई इलाकों में भी घर घर जाके पोलियो के जो कतरे हैं वो बच्चों में पिलाए जाएंगे। इस मौके पे इन्होंने उलमा इकराम में सियासी समाजी लोगों से भी अपील की है कि इस कौमी मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और महकमा हेल्थ की जो टीम होगी उनके साथ भरपूर ताउन करें। जी।